ਦੱਸਦੇ ਕਿ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 60 ਮਾਡਲਸ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਮਿਸ ਸੁਪਰ ਟੈਲੈਂਟ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 18 ਸਾਲਾ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਢੋਲ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੇਚਲ ਨੇ ਇਹ ਤਾਜ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਵੈਰੋਨਿਕਾ ਨੋਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਜੇਨਤ ਅਮਾਨ ਨੇ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਰੇਚਲ ਨੇ ਹੁਣ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਖਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸ ਸੁਪਰ ਟੈਲੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਮਿਸ ਸੁਪਰ ਟੈਲੈਂਟ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ। ਨਰਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਸ ਸੁਪਰ ਟੈਲੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਪਰ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦੇ 60 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸੀ। 60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਈਲ ਚਿਹਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੱਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਟੈਲੈਂਟ 2022 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਚਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ। सत श्री अकाल, नमस्ते। थैंक यू सो मच। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया है आज। बिल्कुल रेचल जी, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये होगा कि जब आप पेरिस की धरती पे आपने पाँव रखा था तो आपने कैसा महसूस किया था कि 60 देशों के जो सुंदरियां वहां पे आई होंगी, जैसे आप गए थे वैसे अलग अलग देशों से भी और भी जो लड़कियां वहां पे आई होंगी अपना जलवा दिखाने के लिए, तो आपको कैसा लगा तब जाकर वहां पे? जब मैं गई थी, मैं बहुत ही फोकस्ड वे में गई थी और जैसे मैंने लैंड किया, मैंने फर्स्ट स्टेप अपना लिया पेरिस के एयरपोर्ट के बाहर। मैंने बस एक ही चीज़ सोची कि आई एम रेडी, और मैंने अपने बेस्ट वे में इंडिया को और पंजाब को रिप्रेजेंट करना है। मेरा ये एक ही गोल था कि शुरू से लेकर एंड तक मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव बनना है और मैंने इंडिया का और पंजाब का कल्चर के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में पूरी दुनिया में दिखाना है। आ, जैसे आपने बताया कि 60 देशों के जो लड़कियां उन्होंने भाग लिया, तो आपको कैसा महसूस हुआ कि 60 में से आपको लग रहा था कि आप विनर होंगे, आप विश्व सुंदरी बन के आएंगे, सुपर टैलेंट 22 जो है वो खिताब जीत के आएंगे? ऑनेस्टली मैं बोल कर गई थी कि मैं इंडिया के लिए क्राउन लेकर आऊंगी। मैंने डिसाइड किया था कि मैं हर चीज़ करूंगी, अपनी पूरी हार्ड वर्क करूंगी, ताकि एंड में जाकर चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे मैं जीतूं या ना, मैं ये बोल पाऊं कि मैंने अपना 110% दिया। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ थी, इसलिए मैंने बहुत कॉन्फिडेंस रखा अपने ऊपर और मैंने बोला था कि मैं जीत कर आऊंगी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कहते हैं कि किसी के पीछे किसी का हाथ होता है सक्सेसफुल होने में। तो क्या आपके 18 साल की उम्र में आपने बहुत बड़ी जो है उपलब्धि हासिल की है? क्या आपके माता पिता का आपको कितना सहयोग मिला इसके ऊपर? सबसे ज़्यादा आई मीन कोई क्वेश्चन नहीं है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें बनाते हैं। आज मैं जो भी हूँ, मैं अपने मॉम, डैड एंड यंगर सिस्टर रिया की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे अपनी सारी वैल्यूज़ सिखाई हैं, मुझे अपने कल्चर के बारे में सिखाए हैं, सारे मेरे संस्कार उनसे आए हैं। तो बहुत ज़रूरी बात है, उनकी सपोर्ट की वजह से मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं आगे जा पाऊँ। और कॉम्पिटिशन बहुत मुश्किल होता है। कई दिन थे जब मैं अपने ऊपर मैं डाउट कर रही थी या मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, और उन्होंने ही मुझे मोटिवेशन दी, एनकरेजमेंट दी, और उसकी वजह से मैं आगे जा पाई।
तो आगे का एजुकेशन का आपका कैसा है कि एजुकेशन कैसे करेंगे, क्योंकि अभी आपको और भी काफ़ी गोल जो है मारने होंगे, काफ़ी और सक्सेस उपलब्धियां हासिल करनी होगी, तो एजुकेशन साथ साथ में आप कैसे करेंगे? सो एजुकेशन के लिए मैं जब से छोटी थी स्कूल में मैं बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं अगर कुछ भी करती हूँ मैं उसको पूरी 100% देकर करती हूँ। सो स्कूल में बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत बड़ा प्लान था कि मैं सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाऊंगी बिजनेस पढ़ने, और मैंने अप्लाई किया और हर एक यूनिवर्सिटी में जहाँ मैंने अप्लाई किया मुझे एडमिशन मिली। तो अब मेरा प्लान है कि एजुकेशन एक बहुत बड़ी गिफ्ट होती है, वो हम अपने आप को वो गिफ्ट देते हैं, और मैं ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू करूँगी साथ में ऑनलाइन। क्योंकि मैंने सोचा कि अगर लाइफ में आपके बहुत सारे गोल्स हैं, मेरी एज है, मैं सारे गोल्स इकट्ठे करूँगी, क्योंकि मैं मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ बैलेंस। मेरी एक जो एजुकेशन है, जो मेरा मिस यूनिवर्स का ड्रीम है, जो मेरा बिज़नेस है, साथ-साथ करके आई थिंक मैं बहुत ही एज़ एन इंडिविजुअल ग्रो कर पाऊँगी। सबसे बड़ा एक सवाल है कि 10 साल बाद भारत को ये खिताब मिला है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो कि 10 साल बाद भारत की झोली में ये खिताब डाला गया है? 10 साल बाद आप सुपर टैलेंट 22 बने हो, तो 10 साल पहले जो थे वो नहीं थे, इस बार आपको मिला है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो कि इतना बड़ा गैप और 10 साल बाद भारत के लिए आप इतना बड़ा खिताब जीत के आए? मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा, क्योंकि एक्चुअली जब मुझे क्राउन कर दिया उन्होंने, तो मुझे एकदम से हुआ, मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ, बस शॉक थी मैं कि ये क्या हो रहा है, ये सच है। और अगले दिन जब मैंने इंस्टाग्राम पर कमेंट्स देखे, लोगों के मैसेजेस देखे, मुझे सारा सपोर्ट दिखा, अपनी कंट्री से, पंजाब से मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला, और मैं इतना शॉक में गई थी कि एक्चुअली में हमने बहुत कुछ बड़ी चीज़ कर ली है इंडिया के लिए, और ये वाली चीज़ हिस्ट्री में जाएगी, और मुझे अभी तक ऑनेस्टली बिलीव नहीं हो रहा कि इंडिया के लिए कितनी अच्छी चीज़ हो गई है। अ, वेरिटेरिया, पेरिस की वेरिटेरिया की एक लड़की भी आपके साथ बराबर अंक थे दोनों के। उसके भी जितने अंक आपके थे, उतने ही अंक उसके थे। तो फिर कैसे आपको उन्होंने जो है सुपर टैलेंट 22 चुना, जबकि अंक दोनों के बराबर थे? क्या उन्होंने आपके बीच में देख लिया? क्या ऐसा आपने उनको दिखाया कि आप जो है इस समय इस खिताब में बैठे हुए हैं? सो जो स्कोरिंग होती है वो एक्चुअली फर्स्ट डे से शुरू हो जाती है। वो आपकी हर चीज़ देखते हैं, लोगों को लगता है ब्यूटी पैजेंट्स में जो सबसे सुंदर लड़की है वो जीतती है। पर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो डे 1 से देखते हैं कि आप बात कैसे करते हो, आप चलते कैसे हो, आप अपने कंट्री को कैसे रिप्रेज़ेंट करते हो, हर चीज़ वो देखते हैं। और वो स्कोरिंग करते रहते हैं। फाइनल नाइट पर जब उन्होंने स्कोर्स टैली किए, पेरिस फैशन वीक के बाद और कंपटीशन के बाद, तो उन्होंने नोटिस किया कि पोलैंड और इंडिया के सेम पॉइंट्स थे। तो उन्होंने हमें को-विनर्स क्राउन किया, जो कि मेरे ओपिनियन में बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, एक कंट्री को नहीं 2 कंट्रीज़ को क्राउन्स मिले, जो बहुत अच्छी बात है, और हम दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत खुश हैं, कंट्रीज़ बहुत खुश हैं कि हम दोनों ने अपने-अपने कंट्रीज़ का नाम रोशन किया। जब आप पेरिस से भारत की धरती पे हमने पहले पाँव रखा, या क्राउन जीतने के बाद पहले पाँव रखा, तो कैसा स्वागत किया गया सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से? कैसा आपको रिस्पॉन्स मिला? कैसा स्वागत किया गया? इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा स्वागत किया था मेरा। एक्चुअली पहले मैं दिल्ली एयरपोर्ट में आई थी, तो उधर पूरा जो इंटरनेशनल अराइवल्स का टर्मिनल 5 है, वो भरा हुआ था लोगों के साथ, हज़ारों लोग थे उधर। बैंड चल रहा था, ढोल चल रहे थे, भंगड़ा हो रहा था, इतना ज़्यादा सुंदर वेलकम किया मुझे, इतनी सुंदर सेलिब्रेशन हुई उधर, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि उधर की गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने ये अलाउ किया, बिकॉज़ सब लोगों ने इकट्ठे सेलिब्रेट किया ये इंडिया के विन। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी जीत नहीं, ये इंडिया की जीत थी, और हम सब ने सेलिब्रेट किया इकट्ठे। मुझे बहुत ही खुशी थी कि मैं घर आ गई हूँ। फाइनली सब कुछ के बाद, इतनी लंबी जर्नी के बाद मैं घर आई हूँ। पंजाब में आकर मैंने अमृतसर में कल लैंड किया, तो वो मुझे और भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पंजाबियों का वेलकम अलग ही होता है, और मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं फर्स्ट स्टेप लूँगी और पंजाब की हवा आएगी, पंजाब की मिट्टी की खुशबू आएगी, वो बहुत ही मेरी एक्साइटमेंट थी उस चीज़ के लिए। एंड अमृतसर में भी बहुत ही ब्यूटीफुल भंगड़ा हुआ, ढोल बजे, बहुत ही लोग आए।
एंड एक बहुत सुंदर सेलिब्रेशन थी और मुझे पूरी एक्चुअली अपनी कंट्री की लव एंड सपोर्ट फील हुई थी उस मोमेंट में। तो आप अपने घर पे आ गए, अपनी धरती पे आ गए। तो जब आप घर पे आए तो माता-पिता का क्या रिएक्शन था? क्या रिएक्ट था? कैसे उन्होंने आपको रिएक्शन क्या दिया जब आप आए? मेरे मॉम एंड डैड सबसे खुश थे मेरे लिए। उन्होंने एंड माय सिस्टर एक्चुअली उन्होंने मुझे डे 1 से इतना ज़्यादा सपोर्ट किया हर रोज़ मुझे लंबी-लंबी मैसेजेस भेजते थे पैराग्राफ्स में, "यू कैन डू इट, यू आर आवर मिस यूनिवर्स, बिलीव इन योरसेल्फ" ये चीज़ें और ये पढ़ के मुझे बहुत हौसला मिला, मुझे बहुत एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट मिली और इसी चीज़ की वजह से आई थिंक मैं जीत पाई क्योंकि अकेले एक बंदे में इतना स्ट्रेंथ नहीं होता, पर मेरे पास अपनी फैमिली की स्ट्रेंथ और पूरी इंडिया की स्ट्रेंथ थी, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। जब मैं घर आई, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे। उनको पता था कि मैं जीत कर आऊँगी, चाहे मुझे कम पता था, उनको 100% पता था मैं जीत कर आऊँगी। उन्होंने बोला था कि जब मैं जा रही थी, वो कहते कि, "आप ऑलरेडी विनर हो। आप एज़ अ विनर जा रहे हो और आप एज़ अ विनर वापस आओगे।" तो जब मैं आई मुझे उनका उनसे हग्स मिले, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने हर चीज़ इधर अरेंज की मेरे लिए ताकि सब लोग इकट्ठे सेलिब्रेट कर पाएँ और ये इससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग नहीं है क्योंकि दे आर प्राउड ऑफ मी और ये बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है अगर आपने अपने आप को, अपने फैमिली को और अपने देश को प्राउड किया है। बिल्कुल, जैसे पंजाब सरकार की तरफ से किसी का कोई आपको फ़ोन आया हो, कोई शुभकामनाएँ देने के लिए किसी मंत्री य का या सीएम साहब का या किसी का कोई ऐसा कोई हलचल हुई अभी? बिल्कुल, आई थिंक पंजाब गवर्नमेंट में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एक्चुअली हमारे घर पर एमएलएज़ आए हैं और भी मीटिंग्स मेरी होंगी सीएम के साथ और आगे एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि ये मुझे ऑनर कर रहे हैं एंड मुझे ये रिकॉग्निशन दे रहे हैं इस चीज़ का क्योंकि ये पूरी इंडिया की, पूरी पंजाब की जीत है मैं इसलिए जीती हूँ क्योंकि मेरे में जो पंजाबी कल्चर है, पंजाबी वैल्यूज़ हैं, उनके वजह से जीती हूँ और अब जो देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट कर रही है आगे भी जाकर करेगी, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं और भी मिनिस्टर से मिलूँ, बहुत प्लान्स हैं क्योंकि मैं एक्चुअली सोशल चेंज लाना चाहती हूँ और अपने पंजाब और इंडिया के कम्युनिटी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि आप पेरिस गए, वहाँ से आपने जो खिताब जीता, तो इसको कितना टाइम लगा? कितने दिन का वो आपका शो था? कितने दिन आपको मेहनत करनी पड़ी इस इतनी बड़ी मंजिल पाने के लिए? जो शो था वो 23rd को शुरू हुआ एंड 27th ऑफ सितंबर को ख़त्म हुआ और उन्होंने शुरू से लेकर एंड तक पूरी जजमेंट की हर रोज़। शो के दिन 27th ऑफ सितंबर को हमारा पेरिस फैशन वीक में हुआ था, फर्स्ट आई वॉक्ड एज़ अ मॉडल। उसके बाद हमारा कॉम्पिटिशन हुआ और उन्होंने फाइनल उधर ही अनाउंस कर दिया। पर उससे पहले जो 18 सालों की मेहनत तब गई है वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि चाहे मेरी तैयारी इस कॉम्पिटिशन के लिए अभी 2 या 3 महीनों से चल रही है, जो 18 सालों की तैयारी पहले चल रही है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कॉम्पिटिशन्स आपको अंदर से जज करती हैं कि आपकी सोच कैसी है, आपकी डेवलपमेंट कैसी है, थिंकिंग, बोलने का हर चीज़। और इसलिए जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है, जो मेरे कल्चर ने मुझे सिखाया है 18 इयर्स में उसी के कारण मैं जीती हूँ। ये 23rd से 27th का तो मैं दिखा रही थी कि मैंने 18 सालों में क्या तैयारी क्या की है, क्या सीखा मैंने। तो आपको क्या-क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस सारी सिचुएशन में, ये खिताब जीतने के लिए? इतना आसान तो नहीं है ये जीतना, कोई ना कोई तो कठिनाई आई होगी, उसको कैसे दूर किया? जो कमी थी कैसे दूर किया? क्योंकि दर्शक देख रहे हैं, आपको लाइव देख रहे हैं, तो थोड़ा-सा दर्शकों को भी पता लगना चाहिए ना, भी ये खिताब जीतना इतना आसान नहीं था, लेकिन कोई ना कोई तो उसमें कठिनाइयाँ आई होंगी, कमियाँ आई होंगी, कैसे आपने उसको अचीव किया, कैसे दूर किया? नहीं, बिल्कुल, लोगों को जैसे मैंने बोला लगता है कि सबसे सुंदर लड़की जीतती है, पर ऐसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इतनी इंटेंस हमारी इंटरव्यू की राउंड्स होती हैं, वो आपको हर चीज़ पूछते हैं, आपकी कंट्री के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं इकॉनमी में, सोशल डेवलपमेंट में, आपको उन चीज़ों के बारे में आपके पास एक ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है, आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है और मैं साथ में जो चैरिटीज़ एंड एनजीओज़ के साथ काम कर रही हूँ वो भी इसको साथ में मिलाना और एक्सप्लेन करना कि मेरी एडवोकेसी क्या है, वो सब चीज़ें इकट्ठे चलती है। जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं मैं उधर गई थी, रेचल गुप्ता नहीं गई थी, इंडिया गई थी।
सो मेरे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी कि मैं करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो हमारी देश की सारी रिलीजन्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, कल्चर्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, हर जने को मैं रिप्रेजेंट कर रही थी। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि मैं बेस्ट वे में करूँ ताकि पूरी इंक्लूसिविटी हो, डाइवर्सिटी हो। और इसका बहुत ज़्यादा वेट होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इतनी बड़ी और डाइवर्स कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। उसका बहुत प्रेशर होता है क्योंकि हर कंट्री से हर लड़की बहुत ही सुंदर होती है, अपने कंट्री में स्पेशल होती है, टैलेंटेड होती है। और आपको अपने अंदर फेथ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक भी सेकंड के लिए अपने आप को डाउट करोगे तो आप सोच लो कि आपका कंपटीशन उधर ही ख़त्म हो गया, आप उधर ही हार गए हो। तो बहुत ही मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होता है इसके लिए। तो आपकी हॉबीज क्या क्या है? तो जैसे अभी ज्यादा तो आपको मेरा हिंदी और इंग्लिश का है, तो हॉबी क्या है, थोड़ा सा दर्शकों को। हॉबीज़, मैं बहुत कुछ करती हूँ एक्चुअली। मुझे अच्छा लगता है जब मेरे दिन बहुत भरे-भरे हुए हों। सो मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ती हूँ। मतलब एक दिन में मैं तो एक बुक कंप्लीट कर सकती हूँ, बहुत पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है एक नए वर्ल्ड में जाने के लिए। मैं गोल्फ़ खेलती हूँ क्योंकि वो मुझे काल्म रखता है, मुझे यू नो माइंडसेट मेरा क्लियर हो जाता है उसके साथ। मैं बॉक्सिंग करती हूँ, उसके साथ भी माइंडसेट क्लियर होता है और मैं अपनी एनर्जी यूज़ कर सकती हूँ उसमें, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मुझे एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे मॉम एक फ़िटनेस ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो वो मेरे में उन्होंने हैबिट डाली हुई है, जो कि बहुत अच्छी हैबिट है हेल्थ के लिए। और साथ में मुझे अपने बिज़नेसेस रन करना बहुत अच्छा लगता है। जब से मैं छोटी थी, मेरे में एंटरप्रेन्योरशिप का ड्राइव रहा है और मैंने रिसेंटली अपना बिज़नेस स्टार्ट किया जालंधर में, द ग्लैम बार। तो उधर मैं अपना काम करती हूँ, अपने डैड के साथ मैं रियल एस्टेट करती हूँ जालंधर में, और साथ में जो उनकी बिज़नेसेस हैं, उनमें मैं काम करती हूँ क्योंकि अम, मॉडलिंग मेरे लिए नई चीज़ है, पर बिज़नेस जो है मेरा मेन पैशन है लाइफ में। और साथ में मेरी नेक्स्ट ईयर मिस यूनिवर्स की तैयारी चल रही है, जो कि मेरा पैशन है। मुझे उसको हॉबी कह सकते हैं क्योंकि मैं उसमें बहुत ही लव एंड एफर्ट डालती हूँ। जैसे अभी आपने सुपर टैलेंट 22 जीता, इसके पीछे आप गुरु किसको मानते हो? कौन आपका गुरु है? किसने आपको जहां तक पहुंचाया? तो अभी आप मिस यूनिवर्सल की तैयारी कर रहे हो, तो किसके साथ कर रहे हो? कौन आपको ये सारा टैलेंट सिखा रहा है? कौन आपका गुरु है? मैं डेफ़िनेटली बोलती हूँ कि एक साइड से तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकती कि मेरे पेरेंट्स और सिस्टर नहीं हैं। उन्होंने मुझे इतनी सपोर्ट की है, उन्होंने मुझे जो मैं हूँ, उन्होंने मुझे बनाया है और उनकी वजह से मैं इधर बैठी हूँ, उनकी वजह से मैं उस स्टेज पर मुझे क्राउन दिया था। साथ में मैंने जो अपनी सारी इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन है, जो हमारे पंजाब के आर्टिस्ट्स हैं, जो हमारे मेरे से पहले जो आइकॉन्स हैं पंजाबी, उनसे मैंने इंस्पिरेशन लिया, स्ट्रेंथ लिया, क्योंकि उन्होंने जैसे पंजाब के कल्चर को पूरी दुनिया के मैप पर दिखाया है, जैसे उन्होंने पंजाब का नाम रोशन किया है, उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी ऐसा करूं। और अपने कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करूं, उनको प्राउड करने के लिए, उनकी लाइफ्स बेटर करने के लिए। इसलिए मैं मेरी ये जर्नी शुरू हुई है। आपका खाने का स्टाइल, क्योंकि पंजाबी हो, पंजाबियों को ज़्यादा पंजाबी खाना पसंद आता है। आप पेरिस में रहे, तो पेरिस में तो आपको पंजाबी खाना कम कम मिला होगा, तो कैसे आपने सारा मैनेज किया? क्योंकि पंजाब के लोग हैं, पंजाबी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपको पंजाबी खाने में क्या क्या पसंद है? बिल्कुल, पंजाबी लोगों को पंजाबी खाना खाकर ही खुशी मिलती है। और मैंने बहुत याद किया अपनी माँ के हाथ का खाना, तो सबको सबसे अच्छा लगता है। बहुत याद किया मैंने उधर, चाहे मैं इतने अच्छे-अच्छे होटल्स में थी, पेरिस में, और भी मैंने बहुत ट्रैवल किया है दुनिया में, बट जो घर का खाना होता है वो अलग होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्यार के साथ बनता है। एंड पहली चीज़ जो मैंने बोला था कि मैं घर आकर करूँगी, वो है एक खाना खाऊँगी मॉम के साथ और डैड के साथ, और मैंने खाया, बहुत ही मुझे अच्छा लगा, क्योंकि फीलिंग भी बहुत अच्छी आती है। और तभी मुझे पता लगा कि मैं घर आ गई हूँ। खाना खाने में ऑब्वियसली जो पंजाबी फूड है सबसे मुझे अच्छा लगता है, राजमा चावल, दाल, सब्ज़ी, हर चीज़। और आलू परांठी वो मैंने बहुत खाया है, मक्की दी रोटी, ये सब कुछ बहुत ही अमेज़िंग है। साथ में मैं वीगन भी हूँ, क्योंकि जो मेरे वैल्यूज़ हैं, मैं कुछ एनिमल से लेना नहीं चाहती, चाहे दूध है, बटर है, मीट है, मैं कुछ भी एनिमल से नहीं लेती, सिर्फ़ प्लांट बेस्ड फूड्स खाती हूँ।
तो अभी आप जैसे आगे वहाँ से तो आप काफ़ी मतलब कि वहाँ पे भी बिजी रहे होंगे, काफ़ी शेड्यूल बिजी होगा। तो जब एक आदमी का शेड्यूल बिजी हो जाता है तो फिर उसको फ्री टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप अपना टाइम कैसे एक्सपेंड करते हो? जैसे अभी आप घर पे हो तो आप कैसे अपना टाइम एक्सपेंड करोगे? क्या क्या करोगे? कैसे मतलब कि सारा इतना 24 आवर का जो समय है कैसे आप निकालोगे? मैं एक बहुत गोल ओरिएंटेड पर्सन हूँ और मुझे अपने डेज़ बहुत ही बैलेंस के साथ रखना पड़ता है क्योंकि मेरे प्लेट पर अभी बहुत कुछ है। एक तो मेरी मिस यूनिवर्स की तैयारी चल रही है जो कि बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टाइटल है और इंडिया के लिए ये मेरा ड्रीम है कि मैं जीतूँ। तो इसकी तैयारी जो है वो मैं ज़रूर करती हूँ दिन में। साथ में जो मेरे बिज़नेसेस हैं, ऑब्वियसली बिज़नेसेस बच्चों की तरह होते हैं, बहुत ही एफ़र्ट डालना पड़ता है उनमें, बहुत ही काम जाता है। उनके लिए मैं रोज़ काम करती हूँ, साथ में मुझे ज़रूर लगता है कि आपको अपनी फैमिली के लिए और अपने सेल्फ के लिए पर्सनल टाइम बहुत ज़रूरी होता है। पर्सनली जो है मैं अपना मेडिटेशन करती हूँ ताकि मैं फ़ोकस्ड रहूँ, अपना गोल्फ़ खेलती हूँ, ये मुझे बहुत फ़ोकस्ड रखता है। अपनी फैमिली के साथ मैं बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ। पूरे दिन में मॉम, डैड, सिस्टर एंड मेरे 7 कैट्स एंड 7 डॉग्स हैं, उनके साथ मैं बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ क्योंकि वो मेरा दिल भरते हैं, उन्हीं के साथ मुझे प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है और एनर्जी मिलती है लाइफ़ के लिए। बिल्कुल, अभी आपने कहा कि आप यूनिवर्सल की तैयारी कर रहे हो, चलो हमारी भी शुभकामनाएँ भी आप यूनिवर्सल बन के फिर भारत का और पंजाब का नाम रोशन करो, ख़ास करके जालंधर का नाम रोशन करो। तो मेरा एक क्वेश्चन ये भी होगा कि यूनिवर्सल की तैयारी से पहले क्या जैसे आपने सुपर टैलेंट जीता है, हमने देखा है चाहे कोई मिस वर्ल्ड है, मिस इंडिया है, कोई भी जीता तो उसको ना फ़िल्म इंडस्ट्री से बहुत ऑफ़र आती है कि आप हमारे पास आ जाओ, आप हीरो बनोगे, आप हीरोइन बनोगे। तो क्या आपको कुछ ऐसा आया कि बॉम्बे से फ़िल्म इंडस्ट्री से किसी ने कोई ऑफ़र की हो? जैसे ऐश्वर्या राय थी, वो बन के आए तो उनको फ़िल्म इंडस्ट्री में ले लिया। तो क्या ऐसा कोई आपको फ़ोन आया या आपका कोई ऐसा आगे गोल है कोई जाने का? सो फ़िल्म इंडस्ट्री से तो बिल्कुल ऑफ़र्स आते हैं, बिकॉज़ आप अपने कंट्री को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो और मीडिया भी एक मेथड है जिसके साथ आप अपने कंट्री को रिप्रेज़ेंट कर सकते हो। डेफ़िनिटली ये ऑफ़र्स आ रही हैं, बट द थिंग इज़ कि अभी जो है मेरा फ़ोकस इस पर नहीं है, बॉलीवुड या हॉलीवुड पर। जो मेरा फ़ोकस है, वो है कि मैं अभी मिस यूनिवर्स बनूँ और इंडिया को इन 2 सालों में जितना मैं कर सकती हूँ, मैं करूँ एज़ अ मिस इंडिया, एज़ अ मिस वर्ल्ड और आगे जाकर होपफुली एज़ अ मिस यूनिवर्स, मैं पूरी एफ़र्ट लगा रही हूँ। मैं अभी डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज़ विक्टिम्स के साथ काम कर रही हूँ। साथ में मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रमोट कर रही हूँ ताकि हर लड़की के पास इंडिया में बायोडिग्रेडेबल एंड ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स का एक्सेस हो। तो ये मेरी अभी एडवोकेसी चल रही है। इसके लिए बहुत ही एफ़र्ट करना पड़ता है और भी बहुत प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मेरे, क्योंकि मैं एक्चुअली चेंज लाना चाहती हूँ। और जब ये मेरे गोल्स हो जाएँगे, जब मेरा मिस यूनिवर्स की जर्नी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं देख सकती हूँ, हो सकता है मैं इस लाइन में चले जाऊँ, हो सकता है मैं पूरी तरह से अपने बिज़नेसेस पर फ़ोकस करूँ, पर अभी के लिए मेरा सिर्फ़ ये फ़ोकस है। बिल्कुल आपका बर्थ कहाँ का है? बाहर का, फ़ॉरेन का है, जालंधर का है? एजुकेशन आपने कहाँ से की? तो आगे जो आप एजुकेशन करोगे, कहाँ से करोगे? पंजाब से करोगे या फ़ॉरेन कंट्री से करोगे? क्योंकि दर्शकों को सारा कुछ आपका चाहिए क्योंकि आप एक बहुत बड़ा इस समय स्टार बन गए हो, सुपर टैलेंट का 22,000 का आपने खिताब जीता है और आप वर्ल्ड की फ़ेमस हस्ती बने हो। तो लोग ये चाहते हैं कि उनको भी पता चले कि एक छोटी-सी उम्र में 18 साल की उम्र में इतना जो खिताब जीतना तो कैसे हुआ? तो आपका जो बर्थ कहाँ का है? एजुकेशन कहाँ से की और आगे आप एजुकेशन कहाँ करोगे? वो सारा दर्शकों को थोड़ा-सा बताइए। मेरी बर्थ पटियाला में हुई थी, पंजाब में ही। मैं बहुत प्राउड हूँ अपनी पंजाबी कल्चर को लेकर। पर मैं अपनी पूरी लाइफ़ यहाँ जालंधर में रही हूँ। ठीक है, ये मेरा शहर है, मुझे हर सड़क पता है, हर चीज़ पता है इस शहर के बारे में। एंड मेरी जो स्कूलिंग है, ये भी जालंधर से हुई है। अब यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत सारे एक्सेप्टेंस ऑफ़र्स मिले हैं, एक्सेप्टेंस लेटर्स, क्योंकि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है इसके लिए स्कूल में, शुरू से जब से मैं छोटी थी। जो मैं अपनी यूनिवर्सिटी करूँगी वो करूँगी या यूएस के किसी टॉप कॉलेज से या कनाडा के। अभी मैंने डिसाइड करना है कहाँ से मैं एक्सेप्ट करूँगी, क्योंकि जब मैं अपनी ऑनलाइन करूँगी मुझे और भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी कि मैं साथ में और कुछ बहुत कुछ करने को अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी मुझे। इसलिए मैं
ऑनलाइन का पाथ सोच रही हूँ करूँगी ताकि मैं पंजाब में रह पाऊँ और इंडिया के लिए और काम करूँगी इधर एज अ मिस इंडिया, एज अ मिस वर्ल्ड। एंड ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हम एज इंडियंस हम इधर ग्रो अप करते हैं और हमें अपनी रूट्स भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है और लोग बाहर जाने के चक्कर में अपने रूट्स भूल जाते हैं। और ये मुझे चीज़ डे वन से लगा था कि जो मर्ज़ी हो जाए, मैं पंजाबी हूँ और ये वाली जो वैल्यूज़ है मेरे साथ हमेशा रहेंगी। बिल्कुल, अभी आपने भी सुना होगा या देखा होगा कि जो यूथ है, पंजाब का यूथ, इस समय नशे की दलदल में काफ़ी जो है, वो धँसता जा रहा है। चाहे वो यंगर नो अपना लड़के हों, लड़कियाँ हों। तो क्या आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो कि वो कैसे इससे निकलें? उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल। बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि पंजाब में ड्रग्स का इतना ज़्यादा आ चुका है प्रॉब्लम। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप अगर आप ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हो, अगर आप बस शुरू कर रहे हो, तो आप सोच लो कि आप अपनी लाइफ और आप अपनी पोटेंशियल फेंक रहे हो। क्योंकि हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एज़ अ पर्सन, जो भगवान ने हमारे लिए लिखा होता है, वो हम तभी अचीव कर सकते हैं अगर हम बहुत ही फ़ोकस और डेडिकेशन के साथ तरक्की करें, और अगर हम इन कामों में लग जाएँ तो हमारी लाइफ और हमारी पोटेंशियल वेस्ट हो जाएगी। और मेरा सच में ये बिलीफ है कि पंजाब में और पूरे इंडिया में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छे-अच्छे रिहैब सेंटर्स बने, ताकि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उन्हें हेल्प मिल पाए, हमें अच्छे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स चाहिए ताकि लोगों को ये स्टिग्मा ना हो कि हम उधर नहीं जा सकते या हमें अच्छी केयर नहीं मिलेगी। साथ में एज़ अ सोसाइटी हमें बहुत सपोर्ट करना है इन लोगों को, क्योंकि अभी ये अपने लोएस्ट पॉइंट पर हैं। और जो भी हम कर सकते हैं, अगर हम डोनेट कर सकते हैं, इकट्ठे होकर एक रिहैब सेंटर की अपलिफ्टमेंट, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। क्योंकि एक बंदे में जो पोटेंशियल है वो कोई नहीं इमेजिन कर सकता। और जब इतने लोगों में ये प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम हर एक जने की हेल्प करें। एक पंजाब में एक और नया ट्रेंड है कि पंजाब के लोग ज़्यादा बाहर को भाग रहे हैं काम करने के लिए। यूथ का जितना जो यूथ है, अभी आपको यूथ पंजाब में कम दिखेगा, ज़्यादा यूथ जो है पंजाब से बाहर भाग रहा है। तो क्या आप सोचते हो कि बाहर ज़्यादा काम है या पंजाब में काम नहीं है? तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो कि जो यूथ है कि वो बाहर जाके काम करे या अपने पंजाब में काम करे, या पंजाब की तरक्की में उनका क्या योगदान होना चाहिए? आई थिंक ऑफ कोर्स मैं समझ सकती हूँ कि अगर लोगों को बाहर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो वो बाहर जाना प्रेफर करते हैं, जो कि बहुत अंडरस्टैंडेबल चीज़ है। पर ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारे पंजाब में स्पेशली और पूरे इंडिया में, हमारे कंट्री को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। बिकॉज़ जो हमारे यूथ है उनके पास नए आइडियाज़ हैं, इनोवेशन है, नए बिजनेसेस हैं। और इन स्टार्टअप्स और ये सारे जो आइडियाज़ हैं, इनके साथ ही हमारी कंट्री की डेवलपमेंट होगी और इनके साथ ही हम आगे को निकलेंगे पूरे वर्ल्ड में। और अगर हमारी सारी यूथ ही बाहर को जा रही है तो हमारे लिए इधर कुछ बचता नहीं है। सो आई थिंक कि अगर आप बाहर जा भी रहे हो, अगर आपके प्लान्स भी हैं, आपको ये याद रखना चाहिए कि आप आपके रूट्स इंडिया में हैं। और अगर आप कुछ कर रहे हो उसका फल इंडिया को मिलना चाहिए, बिकॉज़ ये हमारी कंट्री है। हम जहाँ भी जाए दुनिया में, आप इंडियंस को इंडिया में से निकाल सकते हो, पर आप इंडिया को इंडियंस में से नहीं निकाल सकते। और हम जो भी लाइफ में करते हैं, वी शुड मेक श्योर कि अपने लिए नहीं, हम अपने कंट्री के लिए करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर पॉसिबल है, अपने बिजनेसेस पंजाब में स्टार्ट करो या इंडिया में स्टार्ट करो, ताकि हमारे इकोनॉमी में मनी फ्लो का ज़्यादा अच्छा हो। मैं भी एक इकोनॉमिक स्टूडेंट हूँ, तो मैं मुझे इसके बारे में पता है जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। एंड बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने कंट्री के इकोनॉमी की हेल्प करें, क्योंकि बाहर जाकर हमारी कंट्री की हेल्प नहीं हो रही, दूसरी कंट्री की हो रही है। एंड पूरे वर्ल्ड के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम हर कंट्री की करें। पर अभी इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री और इसको आगे लेने के लिए वी हैव टू कीप आवर टैलेंट इन इंडिया। तो क्या पंजाब सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो यूथ है, पंजाब का यूथ पंजाब में ही रहे, पंजाब में उसको काम हो और नशे की दलदल से वो दूर रहे, उसके लिए पंजाब सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए?
आई थिंक यूथ्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी बात है, अब जैसे अगर कोई एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हो गए जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर सकती है, अगर मिनिमम वेज का इम्प्रूव हो सकता है ताकि लोग इधर रहना चाहें। आई थिंक कि जब आप यंग हो और आपके पास इतनी आइडियाज़ है, इतना पोटेंशियल है, द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो वो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए अगर हम यंग पीपल के लिए लोन्स अवेलेबल कर पाएँ, या अपॉर्चुनिटीज़ कर पाएँ, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे पाएँ, तो डेफ़िनिटली इन सप्लाई साइड पॉलिसीज़ के साथ हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे यूथ को हर चीज़ इधर मिले और बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। वी हैव टू मेक श्योर कि इधर के लोगों को हम लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा दें, एंड वो तभी होगा अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और इन सब के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पहले लोगों ने इधर रहना है ताकि हमारे इकोनॉमी में मनी ज़्यादा इंजेक्ट हो, ताकि गवर्नमेंट हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ दे पाए, एंड इसी के साथ हमारी पूरी कंट्री की डेवलपमेंट होगी। बिल्कुल, जाते-जाते आप इंडिया न्यूज़ के माध्यम से भारत की जनता को, पंजाब की जनता को और जो पूरे वर्ल्ड में आपको देख रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, जो मुझे अब जीतने के बाद प्यार मिला है, सपोर्ट मिला है, ये अनबिलीवेबल है। और बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है कि इंडिया में यूनिटी दिखती है, हमारी स्ट्रेंथ दिखती है कि हम कैसे एक दूसरे को ऊपर को उठाते हैं। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर रोज़ आप अपनी डेली लाइफ में जो भी करते हो, आप प्यार के साथ करो। आप किसी से मिलते हो, प्यार के साथ मिलो, क्योंकि अगर आप एक जने की एक जने का दिन चेंज कर सकते हो, आप पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो। अपने पोटेंशियल में बिलीव करो, अपने ड्रीम्स में बिलीव करो, और कभी किसी ऑब्स्टिकल को रोकने ना दो अपने आप को, बिकॉज़ ऑब्स्टिकल ज़रूर आती हैं, पर जो आपकी ड्रीम्स हैं आपको वो फॉलो करने हैं, क्योंकि एक दिन आपको उस ड्रीम का फल मिलेगा। और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि अगर आप नहीं रखोगे तो कोई नहीं रख सकता। एंड हम सब में अनलिमिटेड पोटेंशियल है कि हम जो भी चाहते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी, इंडिया न्यूज़ भी आपको शुभकामनाएँ देते हैं कि जो आपका आगे का ड्रीम है मिस यूनिवर्सल बनने का, तो आप मिस यूनिवर्सल बने और पंजाब का, जालंधर का नाम रोशन करें, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन करें। तो इंडिया न्यूज़ भी आपको शुभकामनाएँ देता है। और सबसे बड़ी बात आपने जो कही है कि नशे के ऊपर जो आपने बोला है कि नौजवानों को नशे से दूर रहना चाहिए, पंजाब सरकार को इसके लिए नए नए प्रोजेक्ट लेके आने चाहिए ताकि जो नौजवान नशा करते हैं उस नशे की दलदल से दूर रहें और उनको जहाँ ही रोजगार मिले ताकि उनको बाहर विदेशों में जाने की जरूरत ना पड़े। कैमरामैन तरुण के साथ नरेंद्र गुप्ता, इंडिया न्यूज़ पंजाब, जलंधर। जिस तरह कि ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਤਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਬਨੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ पंजाब दे नाल। सत श्री अकाल, धन्यवाद।